Hello and Assalamu alaikum, dear students. I'm your class teacher Nisar Ali with another very important practical based mathematical question for the applications of linear systems in electrical networking. Dear students, the statement for the given electrical network is determine the loop currents in the network in the given figure. Okay, the question is very simple. We are supposed to calculate the current flow in each loop. Dear students, now first let's understand the electrical circuit or the diagram. Here we can see a battery of 30 volt is provided. This is the positive side, this is negative side, and dear student, this is the important thing. Please always consider on this assigned direction. The defined direction is very important for any loop or any electrical network. In the first loop, the current flow will be I1 and the defined or the assigned direction will be anti-clockwise. And this is loop 2. Second loop, here we have the current flow I2 and the defined current flow is again anti-clockwise. And here for the third loop, the current will be I3 and the assigned direction will be again anti-clockwise. And dear students, we can see there are too many resistors and we can see the values for the resistance as well, and there are a path or the node A, node B, node C and node D. And here we are given a 5 volt battery and here we are given a 20 volt battery. So dear students, let's compute the I's, I mean I1, I2 and I3 for the either loop. Okay, let's start for the first loop. Dear students, in the first loop, the current I1 flows through three resistors 1, 2, 3, and the sum of the voltage according to the Ohm's law, the voltage will be V equal to IR. The sum of IR voltage drops, let's see what will be the relation. This diagram is in front of you. Let's compute here. The sum of the IR voltage drop R here according to the Ohm's law, V equal to IR. So we can use this Ohm law to calculate the sum of the IR voltage drops for the loop 1. So this will be 4 times I1 here and here plus 3 times I1 and here plus 4 times I1. This will be is equal to 11 I1. This is what the total current in first loop. But dear students, please check very carefully. The current flow from loop 2 also flows in part of loop 1. Here you can see this is second loop, but this part is common for both loops 1 and 2. यानी कि ए से बी का जो हमारे पास रास्ता है, ये रास्ता लूप ए और लूप बी दोनों के लिए कॉमन है. तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. देखें, क्योंकि अगर ये लूप 1 के लिए हमने लिया है तो अब ये लूप 2 का भी हिस्सा है. अब जब ये लूप 2 का है तो लूप 1 के लिए क्या ये यहीं 11 आई ही करंट रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है. बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास करंट है इसको हम, ये जो हमारे पास यहाँ पर आई जा रहा है, इस आई को हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट लूप के लिए देखेंगे तो मेरे पास जो करंट का फ्लो है वो आप देखिएगा इस तरफ से है, ये जा रहा है. ठीक है जी, इस डायरेक्शन पर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज in the direction of the assigned direction of I.
लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा लूप 2 के लिए जो हमारे पास बैटरी गिवन है दैट इज़ 5 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये हमारे पास जो लंबी वाली जो हमारे पास यहाँ पर जो कनेक्शन हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर देखा ये हमारे पास जा रहा है यूँ, ये लीजिए ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर ऐसे जा रहा था लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए ऐसे जा रहा था, और लूप 2 के लिए ऐसा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो लूप 1 है उसका ये कहाँ किस तरफ जा रहा है, एंटी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लूप है उसके लिए ये वाला जो करंट है वो इससे क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही डियर? तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम आई आर को हम एसोसिएट करेंगे इसके साथ, इस लूप के साथ, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनेगा। जब हम एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये जो आई वन के लिए जो लूप 1 के अंदर टोटल करंट बना था उसमें से हम लूप 2 के इस हिस्से को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 11I1 - 3I2, और हमारे पास यहाँ पर टोटल जो हमारे पास वोल्टेज यानी एक्सटर्नल जो हमारे पास वोल्टेज या जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ व्हाट 30। तो हमने क्या बात की, हमने यहाँ पर बात की कि हमने अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ लूप 1 के लिए हमने जितने भी पॉसिबल हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया विद दी वोल्टेज प्रोवाइडेड। तो अब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब लूप 2 के लिए देखिएगा एक बार फिर। अब लूप 2 के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अब इसका ये वाला पोर्शन जो है ए बी वाला, ये I1 के साथ कॉमन हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पर सी डी देखिएगा, सी डी जो मेरे पास जा रहा है ये लूप 3 के साथ कॉमन जा रहा है। तो बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन इसकी जो असाइन डायरेक्शन है बिल्कुल वैसी डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी हमारे पास गिवन है। अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 1 3 1। तो कितना हुआ हमारे पास टोटल 6I2। यानी कि हमारे पास जो सेकंड लूप है, जो सेकंड लूप के अंदर मेरे पास जो टोटल, यानी अगर चले मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ लूप 2, तो लूप 2 के लिए जो मेरे पास टोटल करंट होगा देखिएगा 1 2 2 + 3 5 5 + 1 6I2। ठीक है डियर। और डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा एक बार फिर वहीं जो कॉमन हमारे पास पाथ था ये इस डायरेक्शन में है और I1 के लिए इस डायरेक्शन में है। तो एक बार फिर ये क्या करेगा, इस लूप के लिए ये सब्ट्रैक्ट होगा -3I1 फर्स्ट लूप के साथ। और डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा ये वाला जो लूप है ये अब जिस तरह मैंने पहले कह दिया ये लूप 3 के साथ कॉमन है, और यहाँ पर इसकी हम वैल्यू देखते हैं दैट इज़ व्हाट 1। तो ये हमारे पास क्या होगा -1I3 मीन्स I3, और हमारे पास जो टोटल यहाँ पर वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 5 वोल्ट। ये 5 इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। लूप 2 के लिए हमने ये कैलकुलेट कर दिया। रिकॉल करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो क्वांटिटी -3I है दैट कम्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ द लूप 1 करंट। फ्लो देयर इज़ अपोजिट टू द फ्लो इन लूप 2। जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया जो लूप 2 का फ्लो है और लूप 1 का फ्लो है दोनों एक दूसरे के एंटी डायरेक्टेड है, इसलिए हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ये -3I आ रहा है। और हमारे पास जो जो टर्म 6I2 आ रही जो मैंने बता दिया, ये हमारे पास पूरे लूप 2 के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है वो है। और हमारे पास ये जो -I3 आ रहा है ये मैंने बता दिया, ये हमारे पास कहाँ से आई है, ये जो हमारे पास लूप 3 के साथ कॉमन इसका जो लाइन है CD यहाँ से हमारे पास आ गई है। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम लूप 3 के लिए देखते हैं। अब लूप 3 के लिए देखिएगा आपके पास सिर्फ एक ही कॉमन पाथ है जो कि CD है और ये लूप 2 के साथ है। अब देखिएगा लूप 2 के अंदर हमारे पास जो करंट फ्लो था वो इस तरह से है, और यहाँ पर देखिएगा इस पर भी हमारे पास ये जो करंट फ्लो होगा ये यूँ होगा और यहाँ से यूँ आएगा। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला तकरीबन हमारे पास सेम यानी वन डायरेक्टेड हमारे पास आ रहा है तकरीबन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, तो आप देखिएगा कि मेरे पास जो सबसे पहले तो हम इसके लिए क्या करते हैं, टोटल हम इसका करंट चेक कर लेते हैं 1 1 2 1 3 3I3। लूप 3 के लिए मेरे पास क्या आएगा 3I3।
3। और ये जो मेरे पास करंट है ये क्या जाएगा, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास असाइन डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो डायरेक्शन यहाँ से जा रही है ये कहाँ जा रही है, ये क्लॉकवाइज आ रही है। तो इसका मतलब है जो असाइन डायरेक्शन है और हमारे पास जो फ्लो ऑफ करंट है वो एक दूसरे के एंटी हैं, अपोजिट हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास करंट होगा जो I2 है ये मेरे पास क्या होगा, यानी -1 I2 ये मेरे पास नेगेटिव होगा, -1 I2 मीन्स I2, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास जो टोटल बैटरी होगी, अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपने इसको समझना है। यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल यहाँ पर जो वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 20, ठीक है डियर। और यहाँ पर देखिए ये जो 5 वोल्ट है ये भी लूप 3 के साथ कॉमन आ रहा है। अब क्योंकि जब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो लिहाजा ये दोनों हमारे पास किस फॉर्म में आएंगी, सम हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। ये भी नेगेटिव होगा हमारे पास और ये भी मेरे पास नेगेटिव होगा, और -20 और -5 मेरे पास कितना आंसर होना चाहिए, -25, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। क्योंकि जो हमारे पास 5 वोल्ट बैटरी है दैट इज़ अटैच विद द लूप 2 एंड लूप 3, और because of the directions we can see the directions are opposite. Because of the direction chosen for the current in loop 3 the 20 volt battery is negative for the same reason. Therefore we have generated this mathematical form. Let's give this one 3. तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखें तीनों लूप को हमने अंडरस्टैंड किया, और तीनों लूप को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने डेवलप की हैं, मैथमेटिकल फॉर्म हमने उसके लिए डेवलप किया है। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम क्या करते हैं, हम एक बार फिर रीअरेंज करके एक जगह पर लिखते हैं, तीनों को हम एक जगह पर लेकर आते हैं। अगर हम तीनों को एक जगह पर लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये तो लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास। मैं तीनों को एक जगह पर लिख रहा हूँ। लेट्स अरेंज द ऑब्टेन्ड डेटा। तो ये मेरे पास होगा फ्रॉम 1 यू कैन सी 11I1 -3I2 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर मेरे पास होगा इक्वेशन नंबर 2 से -3I1 को पहले रखते हैं +6I2 -I3, इसको हमने ऑर्डरली लिख लिया, तरतीब से लिखा है हमने। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये मेरे पास है -I2 और +3I3 इज इक्वल टू -25। तो ये लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया इन द टर्म्स ऑफ द अननोन्स I1, I2 एंड I3। एक लीनियर सिस्टम हमारे पास आ गया जिसके अंदर जो अननोन्स हैं वो I1, I2 और I3 हैं। यही वो अननोन्स हैं जो हमारे पास गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर अननोन्स हैं, और इन्हीं की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करना है, यही हमारा टास्क है। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या कीजिएगा, ये जो हमने लीनियर सिस्टम ऑब्टेन किया है इस लीनियर सिस्टम को हम एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर रो ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं, और इसके लिए हम क्या निकालते हैं, I1, I2, I3 के लिए रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी, ये आपके सामने ये लीनियर सिस्टम आपको नज़र आता रहे। अब इसकी मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स डेवलप कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगी इसकी 11 -3 0 30 फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 -3 6 -1 constant 5 from equation number 3 there is no I1 means the coefficient will be 0 -1 3 -25 is the augmented matrix for the given practical base mathematical problem for the electrical networking। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्या कीजिएगा, रो ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इस पर रो ऑपरेशन लगा देंगे, और आप क्या कीजिएगा, इसमें I1, I2 और I3 के लिए आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिएगा।
ठीक है, कैसे करेंगे चलें एक हाथ स्टेप में आपको बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको 1/11 इन R1 कर देते हैं। हम लीडिंग वन बना लेते हैं R1 के लिए। चलें जी, 1 - 3/11, दिस विल बी 0, 30/11 और R2 विल रिमेन अनचेंज। बहुत जल्दी मैं आगे जाऊंगा क्योंकि पूरा चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं इन्हीं कंसेप्ट्स पर। पूरा रो ऑपरेशंस और इसके लिए रो ऑपरेशन की टाइप्स, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को ऑपरेट करते करते पूरा चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डियर, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए जी, यस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3R1 + R2 कर देते हैं। ठीक है जी, ऑपरेट कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि हमें ये लीडिंग वन है, लीडिंग वन के नीचे तमाम एंट्रीज़ को हमने ज़ीरो करना है, तो इस वाली एंट्री को हमने ज़ीरो करना है, तो ये ऑपरेशन हमने ऑपरेट कर दिया। तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम ऑपरेट कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स चेक। R1 विल रिमेन अनचेंज्ड, 0, 30/11, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 - 3 0, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, -9/11 + 6। अगर मैं कैलकुलेटर पर डालूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 57/11, और 0 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा तो ये होगा मेरे पास -1, और 30 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो ये होगा 90/11, और इसको मैं ऐड करूँगा 5 के साथ, और इसको अगर मैं एलसीएम निकाल कर रिजल्ट निकालूंगा तो 145/11 आएगा। और R3 पर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, दिस विल रिमेन अनचेंज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिएगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये करेंगे कि हमें यहाँ पर लीडिंग वन चाहिए। लीडिंग वन के लिए हम क्या करते हैं, 11/57 को हम इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 11/57 इन R2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट बनेगा, दिस विल बी R1 विल रिमेन अनचेंज्ड, 11, 0, 30/11, 0, ये लीजिए 11 और 11 कैंसिल, 57 कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे का ये क्या है, इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा मेरे पास -11/57, और यहाँ पर 11 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 145/57, और R3 पर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, -25। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा, हमने रो ऑपरेशन करके इसको रिड्यूस करते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं, और इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास A22 पोजीशन है ये वाली, इसके नीचे इसको हम 0 कर देते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को, और R3 में ऐड करवा देते हैं, यानी ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, 1R2 + R3, क्योंकि ऑलरेडी A32 पोजीशन पर माइनस साइन मौजूद है, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, विल रिमेन अनचेंज्ड, 0, 30/11, और डियर स्टूडेंट्स जिस पर हम नॉन ज़ीरो एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी अनचेंज रहता है, 57, 145। मैं बड़ी जल्दी से आगे जा रहा हूँ क्योंकि ये आप पूरा चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। 0 + 0 0, +1 - 1 0। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -11/57 को, -11/57 को, और ऐड कर देंगे 3 पर, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 160/57, 160/57। और डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 145/57, और इसको हम ऐड करा देंगे -25 से, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम -1280/57। इसको आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, इस A3 पोजीशन पर भी लीडिंग वन चाहिए, तो हम इसके इन्वर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 57/160 इन R3 कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 - 3/11, 0, 30/11। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आगे होगा 0, 1 - 11/57,
145 upon 57 and 0 0 this will be 1 और यहाँ पर देखिएगा 57 से कैंसिल और -1280 अपॉन 160 जब हम डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा -8। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ व्हाट दी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, यानी इसको हम कहते हैं रो एक्लन फॉर्म। अब इसी रो एक्लन फॉर्म को यूज़ करते हुए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये लीजिए मेरे पास I1 R1 से मेरे पास आ गया -3/11 I2 और ये I3 मेरे पास 0 = 30/11 और ये R2 से मेरे पास दूसरी इक्वेशन आएगी, मेरे पास आएगा I2 -11/57 I3 = 145/57 और R3 से आप देखिएगा मेरे पास I3 की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, दैट इज़ -8, दैट इज़ अ यूनिक वैल्यू, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। अब क्या करेंगे, इस I3 की वैल्यू -8 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो I2 मेरे पास आएगा 1। आप इस वैल्यू को पुट करके चेक करके मुझे बता देंगे कि ये जो रिज़ल्ट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं वो सही किए या नहीं किए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, और अगर हम इस I2 की वैल्यू 1 को यहाँ पुट करके इसको यहाँ शिफ्ट करा के एलसीएम वगैरह लेकर हम इसका रिज़ल्ट निकालेंगे तो मेरे पास जो I1 की वैल्यू होगी दैट विल बी 3। अब क्योंकि ये हमारे पास करंट है तो इसको हम यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, इसका यूनिट दे सकते हैं 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड सिमिलरली -8 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा हमने क्या कर दिया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद रो ऑपरेशंस ऑपरेट करके हमने I1 I2 और I3 के लिए हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑब्टेन द यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था वो हमारे पास ये रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ये हमारे पास जो I1 की वैल्यू है दैट इज़ व्हाट 3 एम्पियर और I2 हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ 1 एम्पियर और I3 मेरे पास जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ -8। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिएगा I3 की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ -8, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन। जैसे कि मैंने कहा जो असाइन डायरेक्शन है वो हमारे पास देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब हम बैटरी का जो वोल्टेज आपको प्रोवाइड है इसकी आप डायरेक्शन देखिएगा तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ये जो असाइन डायरेक्शन है इसके अपोजिट जा रही है, आप देख सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट डायरेक्शंस वी हैव ऑब्टेन्ड द नेगेटिव वैल्यू फॉर I3। दैट इज़ व्हाट फॉर द प्रैक्टिकल बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार अपने लेक्चर नोटबुक पर आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसके सोल्यूशन को आप खुद से बनाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।